Hello everyone, this is Vineet Jaiswal, Standard 7. We have new chapter number 4. The name of chapter is powers. So what is powers? Now we are going to discuss about powers. Let's just write a. This is n. So which shows that it is a exponent. Understand? Exponent called powers. ठीक है, just spaces here. After that it is base. So let's suppose when we write a number, this is 2 and this is 3, so that is power and it is base. Understand? So what do you mean? Power is the multiplication of any number of number of time as a power. Let's suppose when I write 2 to the power 3, चलिए, this is, we have to write 2 then 2, so we can write 2 as a multiple 3 times, but 2 should be 3 times in multiple. Take it 2 2 2, these are coming. Understand? This is the 2 2s are 4, 4 2s are 8. The answer is 8. Understand student? So we can say इसको हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, and we just say that index. There are 3 names: powers, exponent and index. Understand? So what is the use of powers? So we are going to learn about what is the use of powers. Let's suppose we just write 4 to the power 6. So how can we write it? 4 raised to the power 6. हम इसको ऐसे उपयोग करके लिख सकते हैं 4 raised to the power 6, और ऐसे 4 लिख सकते हैं 4 raised to the power 6. Understand? Next, 3 to the power 5. So how can we write? 3 raised to the power 5. Understand? So we can write as a number in powers. Let's suppose, please check carefully. Let's suppose we have a number 10 into 10 into 10 into 10 into 10. Student, listen carefully. Each number has a exponent. This is exponent 1, exponent 1, exponent 1, exponent 1, exponent 1. So there are 1 2 3 4 5. So there are 5 exponent of 10. So you can write 10 to the power 5. That means 10 raised to the power 5. Understand? 10 raised to the power 5. Okay student, I think you just study about the expanded form of any number. Expanded form. So just write here expanded form: 4 7 3 6 2. Understand? So how can you write this number in expanded form? In your previous class या अभी इसी जगह में सीखते हैं. This is 4. How many digits after 4? 1 2 3 4. So there are 4 zeros. प्लस 7 लिख लीजिए,
हाउ मैनी डिजिट्स 362, तो 362 की जगह 3 zeros लिख लीजिए। नेक्स्ट दिस इज 3 के आगे 6 plus 2, understand? So we can say as a expanded form. Now right here, what is the, how many zeros? 1 2 3 4, there are 4 zeros, so we can write 4 into 10 to the power 4, this is 7. How many zeros? 1 2 3, 7 में 3 zeros हैं तो 10 to the power 3. there are 2 zeros, देखिए 3 में ध्यान से देखिए 2 zeros, we can write 10 to the power 2. there is only single zero, 6 into 10 to the power 1. और इधर देखिए 2, यहाँ कोई नहीं है, यानी हम क्या लिख सकते हैं? only 2. understand, it is the expanded form. clear? I think you know very well. आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके कुछ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स के जो वेरिएबल्स होते हैं। जस्ट सपोज दिस इज़ x to the power 2, तो यू कैन राइट x into x। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? हाउ कैन यू राइट x raised to the power 2, कितनी है पावर? 2. understand, you can write as it. after that, when I write this number x into x into x into y into y, how many x are there? 1 2 3, so just write here x to the power 3, then y की पावर 1 है तो y 1 ऐड कर लीजिए, y to the power 2, तो you can write x cube y square. understand, you can write these number in exponential form easily. तो बच्चों अब हमारे पास सीखते हैं कि किसी भी नंबर को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो टॉपिक इज़, ध्यान से देखिए, हाउ कैन राइट एनी नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? सो जस्ट राइट द नंबर। चलिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं। आई हैव अ नंबर, दिस इज 32 और आई हैव टू राइट दिस नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यूज़ ओनली सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान से देखिए। प्लीज़ चेक, फॉर फाइंडिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। विच मेथड? PRI, प्राइम फैक्टराइजेशन method. So what are the prime factorization method? Just write the 2. This is 32 and this is right here. Now you know the prime numbers. Prime numbers ध्यान से सुनिए कौन कौन से होते हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। 2 3 5 7 11 13 and 17, many more. So these are the prime numbers. So which is the smallest prime number? 2. 2 16 is 32, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 4 2 4, 2 1 is 2। तो इस तरह से इस जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको और छोटा करता हूँ। अब इस जगह पर 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, ये 1 है छोटा सा, ध्यान से देखिए। अब 2 2 is 1। नाउ राइट हियर द 32। 32 को कैसे लिखेंगे? देखिए कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5। तो कितनी बार 2 आ रहा है, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5, 2 to the power 5. It is in the exponential form. I think topic is clear now. But we have another question. I just write the number 625. 625. Use the prime factorization method. Just draw a line, vertical and horizontal. Just write the 5 625. देखिए लास्ट डिजिट इज 5, तो जब किसी भी नंबर में वंस में 5 आ रहा हो तो वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। जस्ट राइट द 5 से 5 1 ज़ा 5। अब नाउ दिस इज 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 आ गया। दिस इज 12, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 आ गया। तो दिस इज 25, 5 5 ज़ा 25। नाउ यूज 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। दिस इज क्लियर। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। जस्ट राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1 2 3 4। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। 1 2 3 then 4। this is 5 to the power 4। I think topic is clear now. How can we write any number in exponential form? तो बच्चों इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ न्यू टॉपिक की, जिस तरह से हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं कि वो माइनस में है या प्लस में है। तो ध्यान रखिए, लेट्स सपोज दिस इज़ -1 to the power 8। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1? तो इसकी वैल्यू किस में निकलेगी, पॉजिटिव में निकलेगी। वाई? ध्यान से सुनिए कि इसमें आपको याद रखना होगा when exponent is even, then value will be पॉजिटिव। और अगर ऑड की जगह क्या है, मतलब इवन की जगह क्या है, ऑड है, तो इन ऑड में क्या वैल्यू निकलेगी, माइनस। अंडरस्टैंड? कैसे, इसको देखते हैं। मैंने लिखा -1 to the power 8। प्लीज़ चेक। वी कैन राइट 8 टाइम्स, लिखेंगे 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखिए, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए लास्ट में प्लस आ रहा है तो वैल्यू विल बी +1। अंडरस्टैंड? अगर यहीं पे मैंने लिखा 1 to the power -1 to the power 5, अब देखिए 5 इज़ ऑड नंबर, वी कैन राइट एज -1 -1 -1 -1 देन -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। फिर ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो लास्ट में क्या आ रहा है, -1। वैल्यू विल बी -1। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जब किसी भी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट अगर इवन है तो वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, प्लस में आएगी, और अगर एक्सपोनेंट आपकी ऑड है तो हमेशा वैल्यू माइनस में आएगी, और जब माइनस के नंबर हो तब। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम किस तरह से किसी अलग अलग नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आई हैव ए एग्जाम्पल रिलेटेड योर बुक्स।
पेज नंबर 69, example number 5. Example is 5. So in this question we have a number 27,000. How can we write this number? तो 27,000 में देखिए यहाँ पे 3 0 आ रहा है, तो ध्यान से देखिए 27 हमने अलग लिख लिया और 1000 को अलग लिख लिया. अब फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस. 27 का निकालते हैं पहले. 27 किससे जाएगा? 3 से. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो जस्ट राइट 3 इंटू 3 इंटू 3. अंडरस्टैंड? इन ब्रैकेट. अब 1000 को फैक्टर तो बच्चा बच्चा कर लेता है, थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं. 10 से 10 100 जा 1000, 10 10 जा 100. दिस इज 10 1 जा 10. तो आप क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10. तो इस केस में आपको ये चीज़ एक दिखाई दे रही होगी कि आपकी 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, यानी 3 टू दी पावर कितना हो गया? 3. अब इसी तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 को ध्यान से देखिए. 10 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5. यानी 10 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं? बच्चा बच्चा जानता है. 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. तो इस तरह से देखिए इसमें पेयर कैसे बन रहा है? 3 की पावर 2. अब देखिए ये 2 और ये वाला 2, यानी 2 टू दी पावर 3 हो गया. और 5 देखिए, दिस 5, दिस 5 एंड दिस 5. तो टोटल 3 5 है, यानी 5 टू दी पावर 3. तो इस तरह से ये आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. ओवरऑल बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज in next video. Thank you so much. Bye bye.